Good morning, students. So we'll start with the next structure, that is small intestine. So previously we had studied about this stomach, and now we'll study about the small intestine, its function, digestion and absorption. तो हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर पे मतलब अगला स्ट्रक्चर पे पढ़ाई करते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन फंक्शन और उसका डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. तो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था स्टमक के बारे में, तो हम लोग अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाई करते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? एक पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जो पाइलोरिक एंड मतलब जो शुरू होता है स्टमक के पाइलोरिक एंड से और ख़त्म होता है सीकम. सीकम जो होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है. सीकम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है. That is small intestine. It is usually a part of alimentary canal which extends from the it extends from the pyloric end of the stomach and to the cecum, and cecum it is the first part of the large intestine. तो small intestine क्या होता है? alimentary canal का पार्ट है जो पाइलोरिक एंड स्टमक के पाइलोरिक एंड से शुरू होके सीकम तक खत्म होता है. सीकम जो होता है ना वो पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का. So parts of small intestine there are usually three parts: duodenum, jejunum and ileum. Okay, parts कौन से हैं? तीन पार्ट होता है. duodenum, jejunum और ileum होता है. So there are three parts of small intestine: duodenum, jejunum and ileum. So we'll see one by one what is the structures. So it is duodenum. It is usually C-shaped part. Okay, it is usually a C-shaped part which is attached to the posterior abdominal wall. Okay, it is attached to the posterior abdominal wall by peritoneum. So this is C-shaped part which is attached to posterior abdominal wall by peritoneum. So the head of the pancreas. Okay, so head of the pancreas usually lies in the concavity of the duodenum. Okay, it usually lies in the duodenum, and the bile duct and the pancreatic duct, it opens at the concave surface. Okay, it opens at the concave surface, and there is usually a small eminence which is opens which is usually called as ampulla of Vater. Okay, which is usually called as ampulla of Vater. So that is usually, तो क्या होता है? duodenum, it is usually C-shaped part which is usually attached to the posterior abdominal wall by peritoneum, and then the head of the pancreas usually lies in the duodenum, and the bile duct and the pancreatic duct opens in the concave surface, whereas a small opening eminence at this opening is called as ampulla of Vater. तो दूसरा पार्ट हो मतलब जो तीन प्रकार के होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसमें पहला हो गया duodenum, दूसरा जेजुनम और इलियम होता है. तो duodenum क्या होता है? उसका शेप ना सी शेप की तरह होता है. इसका सी जैसा होता है जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच हुआ है. कैसे अटैच हुआ है? पेरिटोनियम से. ओके, कैसे अटैच हुआ है? पेरिटोनियम से. और जो पैंक्रियास का सर होता है ना वो होता है मतलब डिओडिनम में होता है, वो डिओडिनम में लाई होता है मतलब डिओडिनम में होता है. और बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है ना वो ओपन होता है कॉनकेव सरफेस पे. दोनों मिला के, दैट इज बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलके कॉनकेव सरफेस में ओपन होते हैं. और ये एक छोटा सा स्मॉल एमिनेंस होता है जो ओपन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला ऑफ वैटर. तो डिओडिनम क्या होता है? सी शेप होता है जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच हुआ है पेरिटोनियम से. और जो पैंक्रियास का हेड होता है ना वो डिओडिनम की कॉनकेविटी में लाई होता है. और जो बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट होता है वो दोनों ओपन होते हैं कॉनकेव सरफेस में. और स्मॉल एमिनेंस होता है, और स्मॉल एमिनेंस जो ओपन होता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वैटर. तो नेक्स्ट इज जेजुनम. सो जेजुनम इट इज नथिंग बट it is the continuation of the duodenum, and it is the middle portion of the small intestine. Okay, it is the continuation of duodenum and it is the middle portion of the small intestine. So duodenum क्या होता है? वो jejunum क्या होता है? duodenum का continuation होता है, मतलब duodenum से continue होता है और ये middle part होता है, small intestine का middle part होता है. And next is ileum. Ileum it forms the last part of the small intestine. Ileum क्या होता है? वो last part होता है small intestine का. So these are usually the three parts of small intestine: duodenum, jejunum and ileum. So that is duodenum, jejunum और ileum, ये तीन प्रकार के होते हैं. So next is structure. So small intestine mainly consists of four coats. Okay, it mainly consists of four coats that is similar to that of the stomach. Okay, it is present similar to that of the stomach. So they include peritoneal coat, muscular coat, submucous coat और mucous coat. Okay, so they are usually four structure like four coat. Small intestine consists of
same, that is 4 coats which are similar to that of the stomach. That includes peritoneal coat, muscular coat, submucous coat and mucous coat. Peritoneal coat, what is like, it is made up of same thing like serous membrane. Muscular coat, it is made up of circular and longitudinal fibers. Submucous coat is made up of areolar tissues, and mucous coat which is usually forms the inner lining. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्टमक के स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है, जैसे कि उसमें भी 4 होते हैं, जैसे कि पेरिटोनियल, मस्कुलर, सबम्यूकस और म्यूकस। पेरिटोनियल कोट क्या होता है, वो सेरस मेम्ब्रेन से बनाया होता है। मस्कुलर कोट जो होता है ना, वो सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर से बनाया होता है। और सब म्यूकस कोट होता है ना, वो एरोलार टिश्यू से बनाया होता है। और म्यूकस कोट होता है ना, वो इनर लाइनिंग होता है। वो म्यूकस कोट जो होता है इनर लाइनिंग। सो दिस आर यूजुअली द स्ट्रक्चर्स, दिस आर यूजुअली द कोट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिटोनियल कोट, मस्कुलर कोट, सब म्यूकस कोट एंड mucous coat. So next is mucous coat consists of plicae circularis and villi. Okay, so it usually consists of plicae circularis and villi. Plicae circularis usually are number of folds of the mucous membrane. Okay, they are usually the number of folds of the mucous membrane. While villi absorbs carbohydrates, proteins and fats. Okay, where villi absorbs carbohydrates, proteins and fats. तो mucous membrane, mucous coat जो होता है ना, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्लिके सर्कुलेस और विलाई। प्लिके सर्कुलेस क्या होता है, उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का। और विलाई क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को अब्सॉर्ब करता है। विलाई क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को अब्सॉर्ब करता है। सो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 कोट्स, that is peritoneal coat, muscular coat, submucous coat and mucous coat. And mucous coat usually consists of plicae circularis and villi. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 कोट होता है, जैसे कि पेरिटोनियल कोट होता है, मस्कुलर कोट होता है, सबम्यूकस कोट होता है और म्यूकस कोट होता है। जो पेरिटोनियल कोट होता है ना, वो सेरस मेम्ब्रेन से बनाया होता है। मस्कुलर कोट होता है ना, वो सर्कुलर लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर से बनाया होता है। सब म्यूकस कोट होता है ना, वो एरोलार टिश्यू से बनाया होता है। और म्यूकस कोट होता है, वो इनर लाइनिंग होता है। और म्यूकस कोट क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, जैसे प्लिके सर्कुलेस और विलाई। प्लिके सर्कुलेस क्या करता है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन का बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। और विलाई में क्या होता है, ये अब्सॉर्ब करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को। So next is digestion of small intestine. So digestion of small intestine starts with the chyme. Chyme I have told you in the stomach that it is usually semi-liquid form which passes into the duodenum. So that usually the chyme which is present in the stomach enters into the duodenum, and when it enters into the duodenum, it mixes with the alkaline intestinal juice. Okay, it usually mixes with the, so this usually mixes with the alkaline intestinal juice which is called as succus entericus. Okay, so that is the chyme which enters from the enters from the stomach in the duodenum. It mixes with the alkaline intestinal juice that is called as succus entericus and alkaline secretions from the liver and pancreas. Okay, so that is usually what happens. The chyme which is entered from the stomach, it enters in and it mixes with the alkaline intestinal juice which is called as succus entericus and alkaline secretions usually from the liver and pancreas. And the digestion in this small intestine is mainly carried out by the following enzymes. Okay, the enzymes usually carries the digestion of in the small intestine, that is enterokinase, erepsin and sucrase, maltose and lactase. That is enterokinase, what it does, it converts trypsinogen of pancreatic juice into trypsin. So enterokinase, what it is doing, it is usually converts trypsinogen of the pancreatic juice into trypsin. Enterokinase converts trypsinogen of pancreatic juice into trypsin. Erepsin converts polypeptides into amino acids. So erepsin converts polypeptides into amino acids. Sucrose, maltose and lactose converts disaccharides into monosaccharides. So it converts disaccharides into monosaccharides. So digestion in the small intestine, that is the chyme which enters from the stomach and the duodenum, it mixes with the alkaline intestinal juice. And the enzymes which is helpful in the digestion, it is enterokinase, erepsin and sucrose, maltose and lactose. तो डाइजेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो काइम होता है ना, काइम क्या होता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द स्टमक, जो मतलब डाइजेशन में होता है ना, स्टमक में डाइजेशन होने के टाइम में जो काइम प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, डिओडिनम के अंदर जाता है। जब डिओडिनम में आता है वो, तब वो इंटेस्टाइनल जूस से मिक्स हो जाता है, इंटेस्टाइनल जूस से मिक्स हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सुकोस एंट्रिकस। और जो ये सिक्रीशंस होता है ना, अल्कलाइन सिक्रीशंस क्या होता है, लिवर और पैंक्रियास से होता है। अल्कलाइन सिक्रीशंस क्या होता है, लिवर और पैंक्रियास से होता है।
और जो डाइजेशन होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये कुछ एंजाइम से होता है। जो एंजाइम हेल्प करता है डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होता है एंट्रोकाइनस। एंट्रोकाइनस क्या कर रहा है यहाँ पे, ट्रिप्सिनोजन होता है ना पैंक्रियाटिक जूस को, उसको कन्वर्ट कर रहा है ट्रिप्सिन में, उसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। और एरिप्सिन क्या करता है, वो पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। और जो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज होता है ना, वो डाइसेकेराइड्स को कन्वर्ट करता है मोनोसेकेराइड्स में। ओके, डाइसेकेराइड्स को कन्वर्ट करता है मोनोसेकेराइड्स में। सो इट इज डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो काइम होता है ना स्टमक से, वो डिओडेनम में एंट्री होता है। जब वो एंट्री करता है तो वो मिक्स हो जाता है अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस से। और जो एंजाइम्स हेल्पफुल होता है इंटेस्टाइनल, वो जो एंजाइम हेल्पफुल होता है डाइजेशन में, वो होता है एंट्रोकाइनस, एरिप्सिन और सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। एरिप्ट्रोकाइनस क्या करता है, वो ट्रिप्सिनोजन को पैंक्रियाटिक जूस को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एरिप्सिन जो होता है ना, वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और जो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है, वो डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। So it is usually about this digestion of small intestine. So next is absorption. So absorption जो मतलब जो खाने को absorb करता है ना, वो डाइजेस्टेड फूड को absorb करना है, तो ये जो करता है ना वो विलाई के थ्रू होता है। म्यूकोस्पोर्ट में मैंने बोला था ना कि विलाई होता है, तो वो जो absorption करना है ना डाइजेशन फूड का, वो विलाई से होता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, विलाई से होता है। तो विलाई क्या होता है, वो माइन्यूट प्रोजेक्शन होता है। विलाई क्या होता है, वो एक माइन्यूट प्रोजेक्शन होता है जो इनर म्यूकोस्पोर्ट, इंटेस्टाइन के इनर म्यूकोस्पोर्ट में होता है, इंटेस्टाइन के इनर म्यूकोस्पोर्ट में होता है। जैसे कि देखो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना यहाँ पे, देखो ये जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, वो सब क्या होता है, विलाई होता है। वो सब क्या होता है, विलाई होता है। सेटिस क्या होता है यहाँ पे, अब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, तो अब्जॉर्प्शन में यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो अब्जॉर्ब होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे अब्जॉर्ब होता है, विलाई से होता है। विलाई क्या होता है, एक माइन्यूट प्रोजेक्शंस होता है जो म्यूकस कोट में प्रेजेंट होता है, जो म्यूकस कोट में प्रेजेंट होता है। तो क्या करता है वो ईच विलाई, ओके, एक एक विलाई में क्या क्या हो सकता है, लिम्फेटिक वेसल होता है। लिम्फेटिक वेसल होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल। तो यहाँ पे फैट्स अब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे फैट्स अब्जॉर्ब होता है और वो थोरैसिक डक्ट तक लेके जाता है, थोरैसिक डक्ट तक लेके जाता है। तो ईच विलाई में क्या होता है, एक तो वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल होता है जो उसको हम बोलते हैं लैक्टियल। तो ये क्या करता है, ये फैट्स को अब्जॉर्ब करता है और वो थोरैसिक डक्ट तक कैरी करता है। उसके बाद कैपिलरीज होता है जो लैक्टियल के आसपास होता है, जो कैपिलरीज होता है जो लैक्टियल के आसपास होता है। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होता है ना वो अब्जॉर्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं ना वो अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद वो लिवर पे लेके जाते हैं पोर्टल वेन के थ्रू। और उसके बाद लिम्फॉइड टिश्यूज होता है जो लैक्टियल्स और कैपिलरीज को पकड़ के रखता है, लैक्टियल्स और कैपिलरीज को पकड़ के रखता है। तो अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना वो अब्जॉर्ब होना है, तो कैसे होता है, विलाई के थ्रू होता है। विलाई क्या होता है, वो एक माइन्यूट प्रोजेक्शन होता है। तो इसमें दूसरे दूसरे प्रोडक्ट है कि इसमें क्या क्या हो सकता है विलाई में, एक लिम्फेटिक वेसल होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल, और यहाँ पे फैट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है और थोरैसिक डक्ट तक लेके जाता है। और उसके बाद कैपिलरीज होता है जो लैक्टियल को सराउंड करते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद लिम्फॉइड टिश्यूज होता है जो लैक्टियल्स और कैपिलरीज को पकड़ के रखता है। सो अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज मेनली डन थ्रू विलाई। सो विलाई यूजुअली कंसिस्ट ऑफ it is minute projections which is attached to the mucous coat of the intestine, and this usually consists of central like lymphatic vessels which is called as lacteals. This lacteals absorbs fat and it is carried out to the thoracic duct. Next it consists of capillaries, so which is usually surrounds the lacteals which is digest the carbohydrates and proteins, and then it is usually carried to the liver by portal vein. Next lymphoid tissues will be there which holds together the lacteals and capillaries. So this is usually about the small intestine. We'll start with the next structure, that is large intestine and its function. So what is this large intestine? So large intestine extends from the end of the ileum to rectum. Okay, it extends from the end of the ileum to rectum. तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, वो इलियम से लेकर रेक्टम तक है। लार्ज कहाँ से कहाँ तक है, इलियम से लेकर रेक्टम तक है। That is large intestine extends from the end of the ileum to the rectum. तो लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड सिग्माइड कोलन।
तो लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीकम होता है, अपेंडिक्स होता है, असेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है और सिग्मॉइड कोलन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ये मतलब इलियम से लेकर रेक्टम तक है। लार्ज इंटेस्टाइन में दूसरा पार्ट्स हो गया सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है और सिग्मॉइड कोलन होता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द इलियम टू रेक्टम. Large intestine consists of following parts, that is cecum, appendix, ascending colon, transverse colon and sigmoid colon. So now we'll see one by one what are the structures it starts like meant for. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं. तो first structure is cecum. So cecum, it is usually a round sac which lies in the right iliac fossa. Okay, so where it lies in the right iliac fossa. It starts from ileocecal valve where ileum joins the cecum. Okay, it commences that it starts from ileocecal valve where the ileum joins the cecum. Okay, where the ileum joins the cecum. तो cecum क्या होता है, एक शॉर्ट सैक, राउंड सैक है. ये छोटा सा राउंड सैक है जो मतलब इलियाक फोसा के राइट इलियाक फोसा में होता है, जो राइट इलियाक फोसा में होता है. और ये इलियोसेकल वाल्व से शुरू होता है, इलियोसीकल वाल्व से शुरू होता है, क्योंकि जहाँ पे इलियम सीकम से मिलता है, जहाँ पे इलियम सीकम से मिलता है. तो ये क्या होता है, तो सीकम इट इज यूजुअली अराउंड लाइक शॉर्ट राउंड सैक which lies in the right iliac fossa. and ये ileocecal valve से it commences at the ileocecal valve where ileum joins the cecum. Okay, where ileum joins the cecum. तो cecum क्या होता है, एक शॉर्ट राउंड सैक है जो मतलब राइट इलियाक फोसा में होता है. और ये कहाँ शुरू हो रहा है, इलियोसीकल वाल्व से शुरू होता है, जहाँ पे इलियम सीकम से मिलता है. तो नेक्स्ट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. सो दैट इज इट इज यूजुअली स्प्रिंग्स आउट फ्रॉम द सीकम at the inch. Okay, it springs out at the cecum at an inch, that is from the ileocecal junction. Okay, that is from the ileocecal junction. So वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, मतलब ये सीकम से निकलता है, मतलब ये सीकम से निकलता है जो मतलब 1 इंच का मतलब 1 इंच, जैसे कि इलियोसेकल जंक्शन से 1 इंच से निकलता है. और ये राइट इलियाक फोसा में प्रेजेंट है. और कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट इलियाक फोसा में प्रेजेंट है. और जो लूमन होता है ना अपेंडिक्स का, वो सीकम से कम्युनिकेट करता है. जो लूमन होता है ना अपेंडिक्स का, वो सीकम से कम्युनिकेट करता है. और इसमें भी 4 कोट होते हैं, जो इंटेस्टाइन की तरह 4 कोट होते हैं, मगर सब म्यूकस कोट में क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू होता है. तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, मतलब ये सीकम से मतलब निकलता है, जो 1 इंच से फ्रॉम द इलियोसेकल जंक्शन. और ये राइट इलियाक फोसा में प्रेजेंट हुआ है. और जो लूमन होता है ना अपेंडिक्स का, वो सीकम से कम्युनिकेट करता है. और जो अपेंडिक्स होता है, इसके 4 कोट होता है, जैसे कि सबम्यूकस सेम इंटेस्टाइन की तरह जो सबम्यूकस कोट होता है ना, उसमें लिम्फोइड टिश्यू होता है. सो नेक्स्ट इज असेंडिंग कोलन. Ascending colon usually it starts from upward from the cecum and in front of the right kidney. Okay, so that is it ascends. Okay, it ascends upwards from the cecum and in front of the right kidney, and then it turns to the left below the liver. Okay, it turns to the left below the liver and forms the transverse colon. So that is it ascends upward. The ascending colon it ascends upward from cecum and in front of the right kidney, and it turns to the left below the liver and forms the transverse colon. That is, it starts from the cecum and in front of the right kidney, then it turns towards left, that is below the liver and forms the transverse colon. तो असेंडिंग कोलन क्या होता है, मतलब ये ऊपर की तरफ सीकम से होता है और राइट किडनी के आगे में होता है. और जो मतलब दाएं की तरफ मतलब लेफ्ट साइड में ये टर्न होता है लिवर के नीचे और ट्रांसवर्स कोलन फॉर्म होता है. सो दैट इज सीकम के मतलब असेंडिंग कोलन क्या होता है, ये सीकम के अपवर्ड की तरह होता है, मतलब सीकम के ऊपर से होता है और इसके आगे में राइट किडनी के आगे में होता है. और लेफ्ट साइड में ये मुंह होता है, जो मतलब किडनी लिवर के नीचे होता है और ट्रांसवर्स कोलन फॉर्म होता है. तो ट्रांसवर्स कोलन व्हाट इज दैट, इट इज अ लूप ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, इट इज लूप ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच एक्सटेंड्स बिटवीन द लोअर सर्फेस ऑफ द लिवर टू द एंड स्प्लीन. ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर सर्फेस ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन. And then it forms in down, it descends downwards and forms the descending colon. तो क्या होता है यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलन, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन का लूप होता है जो लोअर कहाँ से शुरू हो रहा है, लिवर और स्प्लीन के नीचे से. ओके, लिवर और स्प्लीन के नीचे से हो रहा है और जो मतलब नीचे की तरफ जाता है और डिसेंडिंग कोलन बन जाता है, डिसेंडिंग कोलन में बन जाता है.
दैट इज ट्रांसवर्स कोलन। तो क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का लूप होता है जो लोअर मतलब जो कहाँ से शुरू हो रहा है, लोअर सरफेस ऑफ द लिवर और स्प्लीन से एक्सटेंड होके मतलब ये डाउनवर्ड्स में मूव हो रहा है, जहाँ पे ये डिसेंडिंग कोलन फॉर्म हो रहा है। तो डिसेंडिंग कोलन इट इज नथिंग बट द लोअर सरफेस ऑफ द स्प्लीन to the brim of pelvis. Okay, so how it extends from the lower surface of the spleen to the brim of pelvis, and it lies in the left of the lumbar region. Okay, so where it lies at the left of the lumbar region. So descending colon, it extends from the lower surface of spleen. Okay, it extends from the lower surface of the spleen and to the brim of pelvis. Okay, and to the brim of pelvis. Okay, to the brim of pelvis. So it is descending colon क्या होता है यहाँ पे, मतलब ये जो ट्रांसवर्स कोलन में बोला था ना कि लोअर स्प्लीन के लोअर सरफेस से शुरू हो रहा है और पेल्विस के ब्रिम तक होता है, और ये कहाँ पे रह रहा है, कहाँ पे लाई, मतलब कहाँ पे है, लेफ्ट लंबार रीजन में। कहाँ पे है, लेफ्ट लंबार रीजन में। तो ये पे क्या होता है, ये एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, लोअर सरफेस ऑफ द स्प्लीन से लेकर ब्रिम ऑफ पेल्विस तक होता है, और कहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट लंबार रीजन। Sigmoid colon, it is nothing but continuation of the descending colon. Okay, it is nothing but continuation of the descending colon, and it continues below the rectum. Okay, it continues below with the rectum. तो sigmoid colon क्या होता है, मतलब ये descending colon का continuation है जो rectum तक होता है, जो rectum तक होता है. So this is usually the different parts of the large intestine, that is cecum, vermiform appendix, ascending colon, transverse colon. Next is structure of large intestine. So large intestine, it has same 4 coats, that is peritoneal coat, muscular coat, submucous coat and mucous coat, that of the small intestine. But it is usually arranged. Difference is that like the mucous membrane does not have villi. Okay, so the only difference that they have, that the mucous membrane does not have villi. So structure of large intestine क्या होता है, मतलब ये सेम एज दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जैसे कि पेरिटोनियल कोट होगा, मस्कुलर कोट होगा, सबम्यूकस कोट होगा और म्यूकस कोट होगा। मगर एक ही चीज डिफरेंस है इसमें कि मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, विलाई को नहीं रखता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में विलाई नहीं हो रहा है। सो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इट हैज सेम दैट ऑफ द 4 कोट्स. सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. So functions, it is mainly includes that it has digestion, absorption, secretion and excretion. So digestion, absorption, secretion and excretion. So digestion is that, so digestion is mainly carried out by microorganisms of the colon. Okay, digestion is mainly carried out by the microorganism of the colon, where it acts on the undigested and unabsorbed residue from small intestine. So how it is, where it is acting, it is acting upon the undigested and unabsorbed residue from small intestine. तो डाइजेशन क्या होता है, मतलब इसका फंक्शंस होता है डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन. डाइजेशन में क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गन्स के थ्रू होता है, जहाँ पे ये जो मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है और जो फूड अब्जॉर्ब नहीं हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है. So digestion, it is usually carried out by microorganisms. So that is, it digests those food which has not been absorbed or not been digested by the in the small intestine. So that is usually digestion. So next is absorption. So absorption, usually all like proteins, fats and carbohydrates, everything has been already absorbed in the small intestine. So only it absorbs glucose and water. तो इसमें अब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट होता है वो ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हो गया होता है, और इसमें सिर्फ वाटर और ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करता है. सो नेक्स्ट इज सिक्रीशन. सिक्रीशन, सो दैट इज म्यूसिन इज ओनली द सिक्रीशन. सो दिस यूजुअली लुब्रिकेट्स द कोलन एंड फैसिलिटेट्स द पासेज ऑफ फीकल मैटर. तो सिक्रीशन क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ म्यूसिन होता है जो कोलन को रिप्लिकेट करता है और फीकल मैटर को पास होने में मदद करता है. तो सिक्रीशन में क्या होता है, सिर्फ म्यूसिन सिक्रीट होता है, और ये क्या हो रहा है, ये कोलन को लुब्रिकेट करता है ताकि ये फीकल मैटर को पास होने में मदद करे. सो नेक्स्ट एक्सक्रीशन. Excretion in this, iron is mainly excreted in the large intestine. Okay, iron is mainly excreted in the large intestine. Excretion में क्या हो रहा है, आयरन जो होता है ना वो एक्सक्रीट हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में. तो ये हो गया फंक्शन. तो फंक्शन में होता है डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन. डाइजेशन में मतलब माइक्रो ऑर्गन के थ्रू होता है, मतलब जो फूड अब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं हो उस फूड को वो डाइजेस्ट करता है. दूसरा हो गया अब्जॉर्प्शन, मतलब सब कुछ अब्जॉर्ब हो गया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सिर्फ ग्लूकोज और पानी का अब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. सिक्रीशन में मतलब म्यूसिन एक सिक्रीशन होता है जो मतलब लुब्रिकेट करता है ताकि फीकल मैटर आराम से पास हो सके, और एक्सक्रीशन मतलब आयन एक्सक्रीट हो रहा है. सो दिस इज यूजुअली अबाउट दिस लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट इज रेक्टम, एनस एंड डिफिकेशन. तो दूसरा हो गया रेक्टम, एनस और डिफिकेशन. रेक्टम क्या होता है, ये मतलब ये पोस्ट लोअर पार्ट होता है. ये कौन सा होता है, लोअर पोस्टीरियर. कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे है, लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस. तो कहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है, लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस.
तो ये सिग्माइड कोलन और एनस के बीच में है, सिग्माइड कोलन और एनस के बीच में है। तो द लोअर पार्ट होता है ना रेक्टम का, वो डायलेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टल एम्पुला। तो रेक्टम क्या होता है, ये ऑक्यूपाई लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस, और ये कहाँ पे है, सिग्मॉइड कोलन और एनस के बीच में है। और ये जो लोअर पार्ट होता है ना रेक्टम का, वो डायलेटेड होता है और जिसको हम बोलते हैं रेक्टल एम्पुला। तो रेक्टम इट ऑक्यूपाइज द लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस, सो इट एक्सटेंड्स बिटवीन द sigmoid colon and anus, so that the rectum, lower part of the rectum is dilated and is called as rectal ampulla. So next is anus. So anus, it is a small canal measuring about 1 inch. Okay, so that is, it is a small canal which measures about 1 inch. So this is usually the opening of this anus. It is been guarded by a sphincter called anal sphincter. So this sphincter is under voluntary control. So anus, it is a small canal which is measuring about 1 inch, and this is usually opens it is open. The opening of the anus is usually guarded by sphincter, and the sphincter is voluntary control. तो एनस होता है एक छोटा सा कैनाल जो 1 इंच का मेजर होता है, मतलब जो ओपनिंग होता है ना एनस का, वो स्फिंक्टर से गार्ड हुआ होता है, तो जिसको हम बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। ओके, जिसको हम बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। एंड स्फिंक्टर क्या होता है, ये वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। मतलब ये एनस जो होता है ना, वो स्मॉल कैनल होता है जो 1 इंच का मेजर होता है, मतलब जो ओपन होता है ना वो स्फिंक्टर का गार्ड होता है स्फिंक्टर से, जिसको हम बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। द स्फिंक्टर यूजुअली इज अंडर, वो वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस एनस। So this is about this rectum and anus. So next structure, it is usually peritoneum. So peritoneum, it is usually a serous membrane which lines the abdomen and covers the abdominal organs. So peritoneum, it is usually a serous membrane which usually lines the abdomen and covers the abdominal organs. Okay, so peritoneum, it is usually a serous membrane which lines the abdomen as well as covers the abdominal organs. तो पेरिटोनियम क्या होता है, एक सेरस मेम्ब्रेन होता है जो एब्डोमेन को लाइन करता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करता है। तो पेरिटोनियम क्या होता है, एक सेरस मेम्ब्रेन होता है जो एब्डोमेन को लाइन करता है, मतलब एब्डोमेन के आउटसाइड में होता है, एब्डोमेन के बाहर में होता है, जो ऑर्गन्स को कवर करता है, जो ऑर्गन्स को कवर करता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पैराइटल पेरिटोनियम होता है और दूसरा विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम क्या होता है, मतलब ये कहाँ पे लाइन करता है, मतलब कहाँ पे कवर कर रहा है, एब्डोमिनल वॉल्स को, कि कहाँ पे ये कवर कर रहा है, एब्डोमिनल वॉल्स को, मतलब जो एब्डोमिनल वॉल्स होता है ना, कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का जो वॉल्स होता है ना, उसको वो कवर करता है। विसरल पेरिटोनियम क्या होता है, मतलब ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करता है, ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करता है। और जो 2 लेयर के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। ओके, सो 2 लेयर को जो हम लोग स्पेस होता है ना, 2 लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। तो पेरिटोनियम क्या होता है, एक सेरस मेम्ब्रेन है जो एब्डोमेन को लाइन करता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करता है। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पैराइटल पेरिटोनियम होता है और विसरल पेरिटोनियम होता है। पैराइटल पेरिटोनियम मतलब वो वॉल्स, एब्डोमिनल कैविटी का जो वॉल्स होता है ना उसको लाइन करता है, और जो विसरल पेरिटोनियम होता है वो ऑर्गन्स को कवर करता है, और जो 2 लोअर के बीच में जो स्पेस होता है ना उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। जो ऑर्गन्स को ये कवर करता है वो है स्टमक, लिवर और इंटेस्टाइन। जो ऑर्गन को ये कवर करता है वो है स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन्स। So that is peritoneum. It is usually serous membrane which lies abdomen and covers the abdominal organs. So this is of 2 layers: parietal peritoneum and visceral peritoneum. Parietal peritoneum lines the walls of the abdominal cavity. Visceral peritoneum covers the abdominal organs, and the space between 2 layers is usually known as peritoneal space. So organs which usually completely covers it is stomach, liver, and intestine. So peritoneum, it is usually serous membrane which lines the abdomen and covers the abdominal organs. So this consists of 2 layers. So one is parietal peritoneum and visceral peritoneum. Parietal peritoneum which lines the walls of the abdominal cavity. Visceral peritoneum which covers the abdominal organs. So that is usually about this thing. So next is functions of peritoneum. तो functions में क्या होता है, ये पूरा का पूरा कवर करता है या थोड़ा सा कवर करता है abdominal organ का। और दूसरा हो गया, मतलब ये स्मूथ लाइनिंग फॉर्म करता है, स्मूथ लाइनिंग फॉर्म करता है ताकि एब्डोमिनल ऑर्गन्स मूव हो सके, ताकि एब्डोमिनल ऑर्गन्स मूव हो सके। और जो लिगामेंट्स होते हैं ना पेरिटोनियम का, वो पेरिटोनियम को होल्ड करता है अपने अपने पोजीशंस में। जो लिगामेंट्स और मेसेंट्रीज होता है ना पेरिटोनियम का, वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को होल्ड करता है अपनी पोजीशन में। और जो फैट होता है ना पेरिटोनियम का, वो इन्फेक्शन से बचाता है। और जो मतलब ओमेंटम और मेसेंट्री होता है वो स्टोर हाउस होता है फैट का। ओके, वो स्टोर हाउस होता है फैट का। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस पेरिटोनियम. So peritoneum, it is the functions of peritoneum is that it is mainly
it forms a complete or partial covering for abdominal organs. It forms a smooth lining which enables the abdominal organs to move over, and the ligament and mesenteries which is there of the peritoneum, it holds the abdominal organs in position. Omentum and mesentery which is there, it forms storehouse for the fat, and the fat which is there in the peritoneum, it prevents the infections to be carried out from the abdominal organs. So that is usually about this peritoneum. तो peritoneum ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये लाइन करता है abdominal organs को और कवर करता है abdominal organs को. Good morning students. So we were dealing with peritoneum. So what is this peritoneum? So peritoneum, it is usually a serous membrane which lines the abdomen and covers the abdominal organs. So this usually consists of following layers, that is parietal peritoneum and visceral peritoneum. तो हम लोगों ने पेरिटोनियम के बारे में पढ़ाई कर रहे थे. जो पेरिटोनियम होता है सेरेस मेम्ब्रेन जो एब्डोमेन को लाइन करता है और उसको उसके ऑर्गन्स को कवर करता है. और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पैराइटल पेरिटोनियम है और दूसरा विसरल पेरिटोनियम है. तो इसमें दूसरा ऑर्गन्स भी है, जैसे कि मतलब इसमें दूसरा पार्ट्स भी है, जैसे कि ओमेंटा. ओमेंटा क्या होता है? ये पेरिटोनियम का फोल्ड होता है जो स्टमक से कनेक्ट हुआ होता है. ये जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है जो स्टमक से कनेक्ट हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं ओमेंटा. ये दो प्रकार के डिवाइड हुआ है, एक तो ग्रेटर ओमेंटम है और दूसरा है लेसर ओमेंटम. तो ग्रेटर ओमेंटम होता है ना जो लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टमक, और मतलब ये जो हैंग होता है, मतलब ये जो ग्रेटर ओमेंटम होता है ना वो हैंग होता है कहाँ से? लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टमक से. कहाँ से होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टमक से लेकर फ्रंट सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तक. तो ग्रेटर ओमेंटम कहाँ से कहाँ हो रहा है? लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टमक से लेकर फ्रंट सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तक. मतलब जो सर्फेस होता है ना आगे वाला सर्फेस स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां तक वो मतलब वहां तक वो हैंग हो रहा है. So peritoneum, it is the other structure is like omenta. Omenta, it is nothing but the folds of the peritoneum are connected with the stomach, which is called as omenta. Okay, the folds of the peritoneum. So where it is connected to stomach. Okay, the folds of the peritoneum, it is connected to stomach. Okay, if it is connected to the stomach, we call it as omenta. This is divided into two. One is greater omentum and the other is lesser omentum. Greater omentum, what is happening is that it is hanging from the lower border of the stomach. Okay, so from where it is hanging from the lower border of the stomach to the front surface of the small intestine. So from where it starts from the lower border of the lower border of the stomach. Okay, from the lower border of the stomach to the front surface of the small intestine. So greater omentum, it starts from the lower border of the stomach to the until it ends till the front surface of the small intestine. और दूसरा है लेसर ओमेंटम, ये लिवर से, ओके, लिवर का लोअर बॉर्डर से लेकर जो लेसर कर्वेचर है ना स्टमक का, लेसर कर्वेचर तक होता है. मतलब लेसर ओमेंटम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. So it is usually about this omenta. Omenta, it is usually nothing but the fold of peritoneum, which is connected to the stomach, which is called as omenta. And this is divided into two. One is greater omentum, the other is lesser omentum. Greater omentum, it is usually hangs from the lower border of the stomach to the front surface of the small intestine, and lesser omentum extends from the lower border of the liver to the lesser curvature of the stomach. So next is mesentery. तो मेसेंट्री क्या होता है? ये भी एक फोल्ड है पेरिटोनियम का जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट से अटैच हुआ होता है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट से अटैच हुआ होता है, कहाँ तक अटैच हुआ होता है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक. ओके, कहाँ तक कनेक्ट हुआ है? तो कहाँ तक अटैच हुआ है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक. ओके, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस मेसेंट्री. सो मेसेंट्री क्या होता है? यहाँ पे ये जो फोल्ड होता है ना पेरिटोनियम का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स तक अटैच हुआ होता है, और जो पेरिटोनियम अटैच होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से तक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक अटैच होता है. तो क्या क्या इसके अंदर से आता है? दैट इज ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फैटिक्स इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं. किसके थ्रू एंट्री मारते हैं? मेसेंट्री के थ्रू. ओके, किसके थ्रू एंट्री मारते हैं? मेसेंट्री के थ्रू. सो इट इज मेसेंट्री. तो mesentery is the fold of peritoneum which attaches to the different parts of the small intestine to the posterior abdominal wall. So where it is attaching from the different parts of the small intestine to the posterior abdominal wall. So what and all is entering through mesentery is that blood vessels, nerves, lymphatics. This enters into the intestine through mesentery. Okay, this enters into the intestine through mesentery. तो मेसेंट्री हो गया जहाँ पे पेरिटोनियम जो अटैच होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन जो अटैच होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, और यहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फैटिक्स एंट्री मारते हैं इंटेस्टाइन में
मेसेंट्री के थ्रू. So that is uterus. So next is peritoneal ligaments. पेरिटोनियल लिगामेंट्स क्या होता है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि लिवर और यूट्रस को एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है. तो पेरिटोनियल लिगामेंट्स क्या होता है, ये जो फोल्ड होता है ना पेरिटोनियम का, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि लिवर और यूट्रस को कहाँ तक, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस peritoneal ligaments. So these are the folds of peritoneum which connects organs like liver and uterus to the posterior abdominal wall. So next is pelvic peritoneum. So pelvic peritoneum, it is a part of peritoneum which is present in the pelvic region. तो pelvic peritoneum क्या होता है, ये peritoneum का एक पार्ट है जो pelvic region में है, जो pelvic region में है. So this pelvic peritoneum में क्या होता है, ये continuation होता है peritoneum का abdominal cavity में. ये pelvic peritoneum क्या होता है, ये continuation होता है पेरिटोनियम का एब्डोमिनल कैविटी में. So that is usually about this pelvic peritoneum. So these are the different organs, different structures in the peritoneum. That is venta, mesentery, peritoneal ligaments and pelvic peritoneum.